اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا، باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپئے آپ پابندی کے ساتھ ہر ماہ مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں، چینل کی مدد کریں۔ آئیے ناظرین، اس وقت میں الحمدللہ اللہ کی قدرت کے حسین مناظر جسے دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، میں کشمیر میں ہوں، اور گزشتہ کل ہم کشمیر کا جو خوبصورت علاقہ ہے پہلگام میں ہم موجود تھے۔ پہلگام کی وادیاں دیکھی، بیتاب ویلی دیکھی، اور پہلگام سے پھر آگے 15-16 کلومیٹر پر چندن واڑی میں ہم نے باقاعدہ برف کی تہ دیکھی جو پہاڑوں پر جمی تھی، اور پھر وہ برف میں جو بھاگنے کا اور دوڑنے کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، وہ بھی الحمدللہ ہم نے وہ حاصل کیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور دعائیں بھی کی ہے کشمیر کے لیے۔ آپ اسکرین پر دیکھیں کہ کتنے خوبصورت نظارے ہیں۔ جی ہاں، دعائیں بھی کی کشمیر کے لیے کہ اے اللہ، جیسے اس کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے میرے مولا، ایسے ہی اس جنت کی تو حفاظت فرما اور اسے جہنم بچنے سے بچا لے، اور جو شیطان اس خوبصورت حسین وادیوں کو، جنت کو میرے مولا جو جہنم بنانا چاہتے ہیں، ان شیطانی نظروں سے، ان کے ناپاک منصوبوں سے بھی اس پیارے کشمیر کی اور کشمیریوں کی حفاظت فرما۔ تو بڑا خوبصورت نظارہ ہے، آپ تمام بھی دعائیں کریں۔ خیر آئیے، اس وقت میں کشمیر کے دورے پر ہوں، اس لیے میں آڈیو کی شکل میں ہی تقریباً ایک ہفتے سے تمام خبریں بھیج رہا ہوں، روانہ کر رہا ہوں، اور آپ اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ، بہت بہت آپ تمام لوگوں کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آئیے، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے فلسطین کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے آتنکواد کی، اسرائیل کے ظلم، قتل اور سفاکیت اور بربریت کی میں خبریں لگاتار آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ ابھی اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ جناب اب تو اسرائیل میں قانون بن گیا، یعنی اسرائیل نے قانون بنا دیا کہ جو فلسطین کا پرچم بھی اٹھائے گا اسے بھی سزا دی جائے گی، یعنی انتہا کی جا رہی ہے ظلم اور اتیاچار کی۔
اور आतंकवाद की मैं इससे कहूँगा। इतवार के रोज इजरायली काबीना में कानून साजी के उमूर की जिम्मेदार कमेटी ने एक मुसव्वदा कानून की मंजूरी दी है जिसमें इजरायली हुकूमत के फंड से चलने वाले इदारों या यूनिवर्सिटियों में फलस्तीनी परचम लहराने पर पाबंदी आयद की जाएगी। दूसरी तरफ फलस्तीनी क़यादत ने गुज़िश्ता शाम एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया जिसमें यरूशलम में इजरायली इक़दामात का जवाब देने के लिए जवाबी ऑप्शंस पर तबादले ख्याल किया गया। यानी आप अंदाजा लगाते हैं कि किस हद तक इजराइल जुल्म पर उतर आया है और आतंक पर उतर आया है। लगातार फलस्तीनियों पर कभी मस्जिद अक्सा में दरअंदाजी और फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली फौजें और आबादकारों के हमलों के गैर मामूली वाकयात देखे जाते हैं, तो कभी हॉस्पिटल और स्कूल पर बम बरसाए जाते हैं। लेकिन ताज्जुब तो इससे बड़ा इस बात पर है कि इंटरनेशनल गोदी मीडिया कभी इजराइल के आतंकवाद को आतंकवाद या टेररिज्म नहीं कहती। आइए नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन के हालात को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार हम आपको 2 महीनों से जब से जंग वार जारी है वो सारी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की मदद की खबरें आ रही थी और आ रही हैं, लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि जो बाइडेन इंतजामिया ने एक फैसला किया है कि अमेरिका दूर तक मार करने वाली मिसाइल यूक्रेन को नहीं देगा। अमेरिका के इस फैसले पर रशिया ने कहा कि यह फैसला अमेरिका का दानिशमंदी पर मबनी है और अक्लमंदी वाला फैसला है। खैर, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पीर को कीव की जानिब से बार बार मुतालबात के बावजूद यूक्रेन को रूस तक पहुंचने की सलाहियत के हामिल तवील फासले तक लंबे निशाने तक निशाना बनाने वाले मिसाइल सिस्टम की फराहमी को मुस्तरद कर दिया और अमरीकी इंतजामिया ने दूर तक वार करने वाली मिसाइल यूक्रेन को नहीं देने का फैसला कर लिया है। पर यह भी खबर आ रही है फलस्तीनियों के ताल्लुक से और अमेरिका के ताल्लुक से यह खबर आ रही है कि अमेरिका फलस्तीनियों के साथ सफारती ताल्लुकात की सतह बुलंद करेगा। क़यामी अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुआविन वज़ीर ख़ारिजा हादी उमर खुसूसी एलची मुकर्रर कर दिए गए हैं। फलस्तीनी और मगरिबी सफारती ज़राए ने पीर के रोज़ मुआसिर अजीज अशर्क को बताया कि अमरीकी इंतजामिया फलस्तीनियों के साथ सफारती ताल्लुकात की सतह को बुलंद करने का इरादा रखती है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अमरीका को ये भी देखना चाहिए कि इजराइल का आतंकवाद किस तरीके से जो हो रहा है फलस्तीनियों पर, इजराइल के इस आतंकवाद को रोका जाए। आइए नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तानी वजीर आजम, पाकिस्तानी पीएम जो अभी नए पीएम बने हैं, शहबाज शरीफ, वो तुर्की के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। मनसब वजारत उज़्मा संभालने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्की का ये पहला दौरा है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी तुर्की पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम की सदर रजब तैयब उर्दुगान से बिल मुशाफा 1-on-1 मुलाकात होगी, जिसके बाद वफूद की सतह पर बातचीत का इनेकाद होगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के अलावा दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। लेकिन वहीं पर मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बावजूद भी पाकिस्तान में हालात सुधर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में ये नारे लग रहे हैं कि चोर फिर वापस आ गए और इमरान खान की हिमायत और सपोर्ट में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरब और इजराइल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पहली खबर मैं आपको बता दूं कि इजरायली वज़ीर ख़ारिजा का बयान आया है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मुमकिन हैं। उन्होंने कहा कि
सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे तक पहुंचना एक तवील और मुहतात अमल होगा, ताहम इजराइल इस इम्कान में यकीन रखता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारिजा ने कहा कि हमें यकीन है सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का अमल मुमकिन है, यह हमारे मफाद में है। हम पहले ही कह चुके हैं कि इब्राहिम मुआहदे के बाद यह अगला कदम है और वो ये कि एक तवील और मुहतात अमल के बारे में बात की जाए। लेकिन आप जानते हैं कि इजराइल जिस तरीके से आतंकवादी बना हुआ है और फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहता है, इसको लेकर सऊदी अरब को लेकर के इजराइल से ताल्लुकात कायम होंगे तो फिर लोग सऊदी अरब से भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वहीं पर इजराइल और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान आज़ाद तिजारत का एग्रीमेंट भी सामने आ रहा है। मुत्तहदा अरब इमारात यानी यूएई और इजराइल के दरमियान आज़ाद तिजारत के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हो गए हैं, तो जाहिर बात है ये भी आलम इस्लाम के लिए एक नाराजगी वाली खबर है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, रूस के सदर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि अगर मॉस्को के खिलाफ पाबंदियां खत्म की जाती है तो फिर रशिया खाद ग़िज़ाई अजनास बरामद करने को तैयार है। यानी वेस्टर्न कंट्रीज के सामने रूस ने बड़ी शर्त रख दी है। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन वार के बाद तमाम ही ममालिक तकरीबन रशिया को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रशिया दबने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि अब उसने वेस्टर्न कंट्रीज के सामने बड़ी शर्त रख दी है कि जब तक पाबंदियां खत्म नहीं होती तब तक के इसी तरीके से हाल रहेगा। पाबंदियां खत्म होगी तो फिर खाद और ग़िज़ाई अजनास हम बरामद करने को तैयार हैं। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।